Hello, my dear students, good morning. Today I am going to discuss with you very important chapter, pair of linear equation in two variable. So many concepts are given on the YouTube, but my basic aim is how to handle our NCERT textbook. हमें अपनी NCERT टेक्स्ट बुक को कैसे हैंडल करना है और कैसे CBSE लेवल की प्रिपरेशन करनी है. So please be ready. Without wasting the time, let's start. Pair of linear equation in two variable directly connected with your previous class 9th. Okay. So my dear student, you also know that an equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real number, well known, and a and b are not both 0. Remember, is called a linear equation in two variable x and y. This is very important point I would like to discuss with you. Ki when you see the position of we often denote the condition a and b are not both 0. Why? By a square plus b square is not equal to 0. In any equation, you have to watch carefully the value of a and b, जो real numbers आपके coefficients में दिए जाते हैं. अगर उनमें से कोई भी एक 0 हुआ, this is not linear equation in two variable. Understand? You have also studied that solution of such an equation is a pair of values, one for x and other for y. पेयर ऑफ वैल्यूज होती है, एक x के लिए होती है और एक y के लिए होती है. ऑर्डर्ड पेयर में भी अगर आप लिखोगे तो फर्स्ट कम एब्सिसेंट देन कम ऑर्डिनेट, which makes the two sides of the equation equal. In fact, this is true for any linear equation, that it is each solution xy of a linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. That's true. So my dear students, the general form of linear pair of equation in two variable x and y is, फर्स्ट हो जाएगा आपका. अब जब इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन का पेयर, 9th क्लास में क्या होता था, हम एक ही इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में डिफाइन कर देते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में. अब 10th क्लास में ये होगा कि ऐसा पेयर दिया जाएगा, दो इक्वेशन का पेयर. देखिए मैंने दो पेयर तैयार किए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. Correct? So this is your equation number 1 and this is your equation number 2. Very good. So ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में a1 b1 c1 a2 b2 c2, these all real numbers, these are all real numbers. And condition again, देखिए condition again, when you do a1 square plus b1 square, it is not equal to 0. ये 0 इक्वल नहीं होना चाहिए. जो a1 स्क्वायर हो प्लस b1 स्क्वायर हो, चाहे a2 स्क्वायर हो या प्लस b2 स्क्वायर हो, इसका इक्वल 0 नहीं आना चाहिए. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. व्हेन यू गॉट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, these type of equations are called simultaneous equations या pair of linear equations. Okay? और 9th क्लास में आपने पढ़ ही लिया है कि pair of linear equations always represent a straight line. Understand? Next है, you have also studied in class 9 that given two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. तीन possibility हो सकती हैं. The two lines will, या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, will intersect. Okay? The two lines will not intersect, they are parallel. ये देखिए, ये देखिए, तो ये इसके लिए हो गया और ये पॉइंट इसके लिए हो गया, राइट. एंड द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट लाइन्स को जरा ध्यान से देखिए. सपोज ये लाइन ये है आपकी, सपोज L, और इसी लाइन पर एक लाइन और ये लाइज कर रही है, सपोज ये हो गई M. अब एक ही लाइन पर दो लाइन हैं
दिस इज कॉल्ड द कोइंसिडेंट कंडीशन। एक कॉइन पर दूसरा कॉइन है, अंडरस्टैंड? कोइंसिडेंट को अच्छी तरह समझ लीजिए आप। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई मेन ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ टू हैंडल द एनसीईआरटी। तो मैंने एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में कोई नहीं पढ़ता इस चीज़ को, आप ध्यान से देखिएगा। और बोर्ड सीबीएसई ऐसी ही चीज़ों को सर्च करता है, स्पेसिफिक चीज़ों को, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ये आपकी बुक में Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. Okay, this is very lengthy example, but I would like to start from here. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. ये देखिए, अगर हम इसमें x और y लेट करें, if each ride costs ₹3 and the game of hoopla costs ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla? Provide she spent 20, उसको 20 रुपीज़ खर्च करने हैं, you remember. But first condition क्या दी है? The number of times she played hoopla is half the number of rides. ये देखिए, half the number of rides, number of rides को क्या लिया उसने? x. तो बताइए y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। अगर फर्स्ट इक्वेशन बना और क्रॉस मल्टीपल करके हमने ये बना लिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और सेकंड में दिया हुआ है कि अगर वन केस में कितना खर्च होता है, एक्सपेंडिचर 3 रुपीज़ का होता है, तो x में कितना होगा? 3x, है ना? तो वन केस में y खर्च होता है, तो 4 केसेस होंगे, तो कितना खर्च होगा? एक्सपेंडिचर होगा 3/, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? लो, सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया। अब क्लास 9th में आ जाइए। इस इक्वेशन के बेस पर आपको ये टेबल या समरी बनानी है। तो आप x की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/2 क्या हो जाएगा? ओके, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/2 अगर यहाँ से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट्स ये मिल गए 0 0, और 1 पॉइंट ये मिल गया 2 1। सिमिलरली ऐसे ही आप इसकी भी बना लेंगे एक समरी। ये हो गया 0 5। फ्रैक्शन को या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर दें और दूसरा पॉइंट ले लें 4 2। अब आप इन दोनों समरी के या दोनों टेबल के पॉइंट्स को जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो देखिए ये आया, ये आ गया। देखो, एक पॉइंट आया 0 0 से, गया कि नहीं गया? करेक्ट। और दूसरा पॉइंट कहाँ से गया? 2 1 से। ये देखिए स्ट्रेट लाइन गई, और जिस इक्वेशन ने ये स्ट्रेट लाइन दी उस इक्वेशन को देखो इस लाइन के ऊपर ये लिख दिया गया है। एक पॉइंट था आपका 0 5, ये देखिए, और दूसरा पॉइंट आपका कौन सा था? 4 2, ये देखिए, था ना? और ये जैसे ही आपने लाइन ज्वाइन की पूरी, तो बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टेड एट 4 2। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ गई है? 4, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? 2। वेरी सिंपल, राइट? सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ द आंसर। करेक्ट। इस तरह से ग्राफ का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू रिमेंबर दीज थिंग्स कि जब भी कभी ग्राफ पर कोई क्वेश्चन, चाहे वर्ड प्रॉब्लम आए, चाहे आपका डायरेक्ट सीधा कह दे प्लॉट द ग्राफ या सॉल्व ग्राफिकली, यू हैव टू हैंडल लाइक दैट। ओके, सो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट देयर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट देन वी गॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, परचेज 2 पेंसिल 3 इरेजर, और पैसे कितने खर्च किए उसने? 9 रुपीज़ खर्च किए। ओके, हर फ्रेंड सोनाली शॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला एंड सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स सेम काइंड ₹18। रोमिला ने 9 रुपीज़ एक्सपेंडिचर किया और उसकी फ्रेंड सोनाली ने 18 किया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली में आपको इक्वेशन बनाने हैं और ग्राफिकली में आपको इन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है। 2 बातें 10th क्लास में सीख लीजिए। सबसे पहले लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या ले लिए? x। अच्छा बताइए, 1 पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 2 पेंसिल 2x की आएगी, समझ गए ना? है 3 पेंसिल 3x की आएगी। एंड 1 इरेजर की कॉस्ट उसने क्या लेट की है? y।
तो देखिए कंडीशन क्या बनी, पहले रोमिला की बना के देखते हैं। यहाँ से 2 पेंसिल की कॉस्ट हुई 2x, 3 इरेजर की हो जाएगी 3y, टोटल हो जाएगा 9। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 रेडी। ओके, ऐसे ही आप सोनाली का देखिए, उसने 4 पेंसिल खरीदी हैं, 6 इरेजर खरीदे हैं, एक्सपेंडिचर कितना है 18, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही कंडीशन आ गई जो हमने पिछले प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखी थी, इसका ये टेबल या ये समरी तैयार किया तो x की वैल्यू 0 पुट की इसमें, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये क्या होता है एनसीईआरटी डायरेक्ट y इज इक्वल टू बना के यहाँ लिख देते हैं, होगा वही जो आप यहाँ वैल्यू रख करके लाएंगे, है ना। और जब x की वैल्यू आप 4.5, इस तरह के पॉइंट रखे जाते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने में कि आपके फ्रैक्शन या डेसिमल में ऐसे नंबर्स ना आए जो आपको प्लॉटिंग में प्रॉब्लम करें, तो आप नंबर को या तो कंप्लीट होल नंबर में रखें या फिर डेसिमल में 0.5 तक चले जाएं, अंडरस्टैंड, अपॉन 2 में चले जाएं, तो आपको दूसरा पॉइंट भी इजी वे में मिल जाएगा। जैसे इसमें किया उसने, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.3 और ये हो गया 4.5 एंड 0। ऐसे ही आपने इक्वेशन नंबर 2 के लिए 4x + 6y 18 के लिए भी आपने ये समरी तैयार की, x की वैल्यू 0 रखी तो y की क्या आ गई 3, x की वैल्यू उसने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गया 1। सो नाउ लेट अस प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ यू सी, यस, व्हेन वी प्लॉट 0, 3, ये देखिए हियर एंड 4.5, 0 हियर, अंडरस्टैंड। अब इस इक्वेशन में देखिए दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा कॉमन है 0,3, ये देखिए इसमें भी है 0,3। तो अब इस केस में 0,3 दोबारा तो प्लॉट करना नहीं पड़ेगा हमको, और ये 3, 1 को प्लॉट किया तो फिर लाइन ड्रॉ की हमने तो सेकंड लाइन भी इसी लाइन पर आ गई, तो याद करिए कोइंसिडेंट केस। लेकिन इसमें बात अच्छी क्या है कि जैसे ही आप फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, जैसे ही आप सेकंड लाइन के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कोइंसिडेंट होने जा रही है तो सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। तो बताइए इस केस में तो कितने, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसिडेंट होती है तो यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। एवरी पॉइंट इज ए सॉल्यूशन, नॉट ओनली 3.1, नॉट ओनली 4.5, 0, नॉट ओनली 0.3, every point of this line is a solution, understand. So take next example 3. This is very important. Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. Geometrically means graphically, understand. So simple है, आप इसके लिए ये टेबल या ये समरी तैयार कर लें और इसके लिए आप ये तैयार कर लें, एक्स वाई की दो वैल्यू निकालें, एक ये हो गई है, एक इसकी ये हो गई है, 0,3 ये हो गया है और 6,0 ये हो गया है। इन पॉइंट्स को ले जा करके टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली वी प्लॉट द पॉइंट्स एंड विद द नेम ऑफ पॉइंट्स टेक P, Q, R, S समथिंग, ओके। सो लेट्स वी सी हाउ ही प्लॉट द पॉइंट्स। वेरी गुड। फर्स्ट इक्वेशन था आपका x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, इसका ये पॉइंट आया था 0,2 और ये पॉइंट आया था 4,0। व्हेन यू ज्वाइन दिस पॉइंट अक्रॉस द एक्सेस, याद रखिएगा कोई भी स्टूडेंट्स ग्राफ पर केवल ये नहीं करेगा कि इतना सा ज्वाइन कर दिया बस खाली, नहीं, गो अक्रॉस द एक्सेस, ये ऐसे जाना है आपको और ये एरो बना देना इस तरह से, अंडरस्टैंड। एंड इस लाइन पर वो इक्वेशन भी आपको रिटन वे में लाना होगा जो इक्वेशन आपको ये लाइन प्रोवाइड करता है। तो इक्वेशन था x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सेम सेकेंड पॉइंट व्हेन वी प्लॉट 0,3 एंड 6,0 वी ज्वाइन अक्रॉस द एक्सेस, देन वी राइट द इक्वेशन 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. Okay, these two lines are, when lines are not intersecting, there is no solution. Okay, when lines are coincident, there are many solution, infinite solution. When lines are parallel, जब लाइन मिल ही नहीं रही है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? ए बच्चों, उसी तरह लो, जब दो लोगों में झगड़ा हुआ है और दोनों मिल ही नहीं रहे हैं, तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से होगा? बातचीत कहाँ से होगी? अंडरस्टैंड? तो सॉल्यूशन के लिए लाइन का इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है. ओके,
So my dear students, we have taken some observation from these three cases. The lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equations has a unique solution. See, unique solutions में consistent pair of equations होता है, उसकी condition consistence होती है. Second है, the lines may be parallel. In this case, the equation have no solution. If lines are parallel, there is no solution. अब जिनका solution नहीं है तो उनके performance में भी consistency कहाँ से होगी? They are inconsistent pair of equations. इसमें क्या था? When line intersect, there is unique solution. When lines are parallel, no solution. The lines may be coincident. In this case, the equations have infinite solution. तीनों केस मैंने इसलिए जानबूझ कर लिए हैं. एंड जिसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट होंगे. ये देखिए कंसिस्टेंट है, ये देखिए, क्योंकि इनके पास सॉल्यूशन है, राइट. एंड इसमें एक नई चीज और है, डिपेंडेंट इनफाइनाइटली, वन लाइन ऑन अनदर लाइन. ओके, सो कोइंसिडेंट केस में डिपेंडेंट केस भी कभी कभी पूछ लेता है. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो क्लियर है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो आपके कंसिस्टेंट हो जाएंगे. जब लाइन पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन होगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सी द इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 0. लाइन इंटरसेक्ट कैसे पता लगाया उसने ऐसे पता लगाया, या तो उसने ग्राफ ड्रॉ किया होगा. ओके, वैसे ही दो टेबल बना के, समझ गए ना. बट यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक नया सॉल्यूशंस, नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ दिमाग ले चलते हैं. कि जब आपने कहा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दीज आर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन. अगर आप इसको इस फॉर्म में ला करके दोनों इक्वेशन से किसकी वैल्यू लाएं, a1 b1 और c1 की, है ना, इससे लाएं a2 b2 एंड c2 की, और अगर इनके रेशियोज फाइंड करें, लेट अस नाउ राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. सो सी, ये देखिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4. इसलिए उसने कह दिया कि लाइंस इंटरसेक्ट करेगी. बात समझ गए ना? बात समझ गए? क्यों करेगी? क्योंकि व्हेन वी कंपेयर द रेशियोज, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो जब उसने कहा व्हेन ये देयर लाइन विल बी इंटरसेक्ट, तो उसने कह दिया देयर इज यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. इसका मीनिंग क्या हुआ? x की एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी. तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपकी समझ में आ गया और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी आपने कर लिया. यानी इस रेशियो के सॉल्यूशन से हमको ये पता चल जाता है कि हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा. बात समझ गए ना? सेकंड केस को देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x 6y माइनस 18. देखिए a1 2 b1 3 c1 माइनस 9 लेना है. लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, देखिए ये लिया उसने. ऐसे ही आपको a2 b2 c2 इससे लेना है. कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, ये आ गया 3 अपॉन 6. कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके, तो 1 अपॉन 2 इक्वल आ गया. बट ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 3 जा 9 और 3, अरे सीधा कर दे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, और ये 3 1 जा 3 2 जा, ये 1 अपॉन 2, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल. व्हेन ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, तो देखिए उसने क्या बोला, कोइंसिडेंट लाइन होगी. यानी इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस एक की लाइंस एक दूसरे पर कोइंसिडेंट करेगी. और जब लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. ओके, लास्ट केस आपका दिया हुआ है थर्ड, x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12. When you compare the ratio 1 upon 2, a1 upon a2, 2 upon 4, yes, it is also 1 upon 2, 1 ja 2, 2 2 ja 4. So a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. But
You see minus minus plus 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. This is not equal to C1 upon C2. यानी A1 A2 B1 B2 का रेशियो इक्वल है बट C1 C2 का रेशियो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा उसने रिजल्ट फाइंड आउट करने का ये प्रोसीजर बता दिया कि ग्राफ पर लाइन कैसी आएगी, इनकी पैरेलल लाइन आएगी। कैसी आएगी? पैरेलल लाइन आएगी। और जब लाइन पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सो देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, सो एवरी स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड आउट द situation of the given equation. Is there any solution? Is there many solution? Is there unique solution? Is there no solution? कैसे find करेंगे? To find out the ratio of A1 A2 B1 B2 C1 and C2. So my dear students, you all remember these three rules, very important. Correct? ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है, which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically. आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको चेक करना है उसी रेशियो से A1 A2 B1 B2 से। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यूनिक, तो आप इससे एक टेबल बनाएंगे, वो जो आप बना अभी देखते आए इस तरह से। बात समझ गए ना? इसकी भी एक टेबल बनाएंगे, बना करके फिर इसको क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे? ग्राफ पर, कॉपी पर नहीं, ग्राफ पर। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आप इनको चेक करिए, अगर जिनके सॉल्यूशंस मिलें तो वो कंसिस्टेंट हैं, और अगर A1 A2 B1 B2 तो इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू C1 C2 तो लाइन पैरेलल आएगी, और ऐसी पैरेलल लाइन कोई सॉल्यूशन नहीं देती तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। बट ये 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 4 में से, इनमें से ओनली 3 क्वेश्चन बनाने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको A1 A2 B1 B2 के थ्रू चेक करके बनाना है कि एक क्वेश्चन आ जाए यूनिक सॉल्यूशन का, एक क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, और एक आ जाए नो सॉल्यूशन का। राइट माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि उसने कहा तो इतना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set the triangular region। हर बच्चे को ये बन जाता है, वो फटाफट इसकी टेबल तैयार करता है और इसकी भी टेबल तैयार कर लेता है इस इक्वेशन की, और करने के बाद वो ग्राफ पेपर पे पहुंच जाता है। जब ग्राफ पेपर पर वो प्लॉट करता है तो उसे कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, इस तरह की। सपोज मैंने ये केस ले लिया, और इसमें हमें, इस केस में हमें क्या मिल रहा है कि एक ही लाइन पर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, लेकिन उसने बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन एक ऐसा एरिया है जो ट्राइंगुलर फॉर्म में है। ये देखिए ए, ये देखिए ओ, और ये देखिए बी। इस ट्राइंगल के अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछता है तो ये हो गया 0 3, ये हो जाएंगे 0 0, अंडरस्टैंड, और ये हो जाएगा 4.5, 0। और अक्सर ये क्वेश्चन दिया जाता है शेड द रीजन। ये देखिए, तो आप इस तरह से पेंसिल से और स्केल को लेकर के इसको शेड कर दीजिए। शेड करने के बाद कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया निकालने में आपको एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए ये ओरिजिन पर कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है। इसके यूनिट कितने हो गए आपके पास? 4.5 हो गए, अंडरस्टैंड। ये कितना हो गया? 4.5। और इसको ले लीजिए आप हाइट, तो इसकी हाइट क्या दी गई है? 0 to 3 यूनिट्स। अब बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या लिखना है आपको? 4.5। हाइट क्या लिखनी है? 3। सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायर यूनिट करके आप उसका एरिया निकाल दो। बात समझ गए कि नहीं? अब लाइन अगर इंटरसेक्ट होगी विद द एक्स एक्सिस पूछेगा तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस का वो ट्राइंगल सेट करिए और उसका एरिया निकाल दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगुलर रीजन वाला। तो आपसे उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस भी पूछ सकता है और उस ट्राइंगल का एरिया भी पूछ सकता है। शेड करने को भी बोल देगा कि शेड कर दीजिए ओनली, कहो एरिया कैलकुलेट ना करने को बोले। एनीवे, in this chapter we have 3 most important method how to solve the pair of linear equation.
वन इज सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, वन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके 3 मेथड आ गए। लेट्स वी टेक द क्वेश्चन। Now this is your example number 4. Equation is 7x minus 15y is equal to 2x plus 2y is equal to 3. करेक्ट। फर्स्ट मेथड हमारा आ रहा है सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट। हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने टेकअप किया है और इसमें ट्रांसपोज करने के बाद x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y करके थर्ड इक्वेशन बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सेकंड इक्वेशन से x की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 1 क्या है, 7x माइनस 15। देखिए ये 7 हो गया। अब x नहीं लिखना है, इसकी जगह x की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस 2y लिखा ना। देन वी सिंप्लीफाई इट। क्या आया हमारे पास, माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस माइनस प्लस हो गया और y की वैल्यू सबसे पहले आ गई 19/29। इस y की वैल्यू को अब हमें इस जो थर्ड इक्वेशन बनाया था इसमें बड़ा इजी लगता है रखना। ये देखिए थर्ड में रखा उसने, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 इंटू 19/29। सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 49/29। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो डोंट लीव द क्वेश्चन एट दिस स्टेज, राइट द स्टेटमेंट विद द आंसर। ऐसा स्टेटमेंट बनाइए, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x इज 49/20y, कॉमा लगाइए, एंड y इज इक्वल टू 19/29। तो आप समझे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। दोनों में इक्वेशन में से पहले तो वो एक सिंप्लीफाइड और छोटा सा इक्वेशन देखना है जिसमें x का कोई कोफिशिएंट ना हो या y का कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर होता भी है तो x की वैल्यू इजी लगे तो x इज इक्वल टू करके निकाल लीजिए, y की इजी लगे तो y इज इक्वल टू करके निकाल लीजिए और उसे जो इक्वेशन छोड़ दिया उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको x या y की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को आप जिस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उस इक्वेशन में जो आपने थर्ड प्रिपेयर किया था, गेट बोथ वैल्यूज x एंड y एंड रिमेंबर राइट द स्टेटमेंट एट लास्ट। बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आप अगर बीच में आंसर छोड़ेंगे, कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो एग्जामिनर सर्च करता है कहाँ लिखा आंसर, x की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू कहाँ है। राइट द आंसर एट लास्ट विद स्टेटमेंट। सेकंड है आपका एलिमिनेशन। ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से मैंने एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ली है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन्स 9:7। दो लोगों की इनकम का रेशियो 9:7 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ये लो स्टार्ट। लेट्स 2 persons by 9x एंड 7x इनकम, क्योंकि 9 और 7 के रेशियो में है ना इनकम उनकी। ओके, एंड देयर एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, 4:3 में। तो रेशियो क्या लिया इसका, 4y एंड 3y। एक बात ध्यान रखिए, ₹10 कमाया, 5 खर्च किया, तो 10 माइनस 5 सेविंग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही चलना है। अगर किसी पर्सन ने 9x कमाया और 4y एक्सपेंडिचर किया तो कैसे लिखेंगे, 9x माइनस 4y और सेविंग इज इक्वल टू 2000 गिवन है। ईच ऑफ देम मैनेजेस, दोनों ने 2000 बचाया, ऊपर दे दिया इनकम और नीचे दे दिया एक्सपेंडिचर। सेकंड केस में भी यही होगा, 7x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 2000। नाउ मेथड कौन सा लिया, अब हमने एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ये होता है कि दोनों इक्वेशन में से या तो x को एलिमिनेट कर दो तो y रिमेनिंग बचेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, या y को आप एलिमिनेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी, इसने क्या किया है, स्टेप 1 में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन को उसने मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। इधर देखो ध्यान से, ये जो कोफिशिएंट है y का ये सेकंड केस में मल्टीप्लाई होगा और ये जो कोफिशिएंट है y का 3 ये फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो सभी में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि खाली y में कर लिया अकेले। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। देखिए ये हो गया 4 का मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। देखिए दोनों का साइन माइनस है, ये देखिए यहाँ भी माइनस है और
यहाँ भी माइनस है। तो ये वाई वाई एलिमिनेट कब होंगे, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो उसने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, ये देखिए 4 से 3 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, ऊपर लिख दिया था 3 पहले 4 इक्वेशन नंबर 4 और नीचे लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है कि जो आपका नेगेटिव है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नीचे नीचे ये माइनस के साइन लगा देते हैं। बात समझ गए? जैसे इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब कैंसिल हो गया 12y और ये y। 8000 में से -6000 हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा। 20x में से -27x करेंगे तो ओनली x आ जाएगा। देखो बच्चों, ये आ गया x इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे एनसीईआरटी ने किया है कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जिससे सब्ट्रैक्ट करना है फोर्थ वाले का, और सेकंड वाले का ये ले लिया ब्रैकेट लगा के और यहाँ माइनस कर दिया। और जैसे ही माइनस की एंट्री अंदर होगी साइन विल चेंज हो जाएगा। तो 27 ये आपका 12y और 12y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और फटाफट आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब आपके पास x आ गया तो इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये आ गया ₹4000 और इसका आ गया ₹2000। व्हाट इज एक्चुअली में x एंड y, हमने क्या लेट किया था बताओ। दोनों की इनकम निकाली जाए तो इनकम निकाली जाएगी तो देखिए ऐसे आएगी, x की वैल्यू इंटू 9 करेंगे तो इनकम आ जाएगी किसकी, फर्स्ट पर्सन की, और ये आ जाएगी सेकंड पर्सन की इनकम, आएगी कि नहीं आएगी, और ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन का y की वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा, राइट। जरा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, अगर हम फर्स्ट पर्सन को देखें तो 2000 मल्टीप्लाई विद 9, तो 9 टू जा कितना हुआ 18000। ओके, y की वैल्यू अगर हम देखें 4000 है तो इसमें रखिए 16000 हो गया। 18000 माइनस 16000, अरे भाई 2000 ही तो बचा रहा था उसने, वेरीफाई हो गया आपका। ओके, थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दिस इज वेरी सिंपल, बट ये एक फॉर्मेट की तरह होता है, ये एक सांचे की तरह होता है। बस उसमें आप उसके कॉफिशिएंट a1 b1 c1 की वैल्यू पुट करते चले जाइए और आपका आंसर आता चला जाएगा x और y का। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चों को ज़रा एक प्रोसेस ये भी डिफाइन करके बता दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर टू साइमल्टेनियस या लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नंबर 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करें कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई b2 एंड इक्वेशन 2 बाई b1, यानी कि वो इन दोनों को एलिमिनेट करना चाहता है y को। बात समझे? जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम दिस एंड सेकंड विल बी दिस, एंड ये बन जाएगा थर्ड और ये बन जाएगा फोर्थ। क्योंकि इनके कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हो गए हैं, तो अगर हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 कर देंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कौन हमारे पास, x। जब हम x कॉमन लेंगे यहाँ पर और जो कांस्टेंट टर्म है ये, इनको राइट साइड में लाएंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अंडरस्टैंड? और इस वैल्यू x को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर बच्चे ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया और वो इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता है और इसमें डायरेक्ट a1 b1 c1 की वैल्यू पुट करता है तो सीधे x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ क्रॉस हुआ क्या, बोलो? ये तो क्या हुआ, ये तो एक तरह से एलिमिनेशन मेथड ही हो गया कि वो डायरेक्ट x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा। अंडरस्टैंड? लेकिन एक कंडीशन और भी है, ऐसा तभी हम करेंगे जब हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर में दोनों के दिया है, ये कभी 0 नहीं आना चाहिए, रिमेंबर। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन क्रॉस, एक्चुअल में क्रॉस मल्टीपल क्या होता है वो एनसीईआरटी ने अगली स्लाइड में दिया हुआ है, राइट। तो मैंने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दिया है कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कौन सा सॉल्यूशन आएगा,
यूनिक सॉल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन ऑल थ्री अगर रेशियो इज इक्वल एंड देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा. बट a1 a2 b1 b2 इज इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयर इज नो सॉल्यूशन. राइट, इसमें भी देख लो, लाइन इसमें कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, इसमें कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इसमें लाइन कैसी जाती है, पैरेलल जाती है. बात समझ गए ना. यानी जिनके पास सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है. सो लेट्स वी टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्टली. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होता है उसी इक्वेशन के लिए जो किस फॉर्म में हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. जितने भी इक्वेशन आपके किसी भी फॉर्म में पड़े हो सबको पहले इस फॉर्म में बना लीजिए, और अब स्टार्ट होता है वो फॉर्मेट, वो सांचा जिसमें वैल्यू रखेंगे और क्रॉस मल्टीपल दिखेगा. देखो कैसे. सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y और 1 लिख लेना है. लिख लिया. जो कॉफिशिएंट के b1 b2 है उनको बाउंड्री पर रखना है. ये देखो रख दिया. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में b के बाद क्या आता है, c, तो x y के बिटवीन क्या ले लिया, c1 और c2 रख लिया, और y और 1 के बिटवीन क्या, a1 और a2 रख लिया. अब क्रॉस लगाया, b1 का c2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस b2 का c1 से मल्टीप्लाई होगा. ये देखिए y अपॉन करेंगे तो c1 इंटू a2 होगा और c2 इंटू a1 होगा. जब 1 अपॉन लिखेंगे तो a1 इंटू b2 होगा, यहाँ पर a2 इंटू b1 हो जाएगा. ये देखिए x अपॉन दिस इंटू माइनस दिस इंटू, ये आ गया. y अपॉन ये देखिए c1a2 माइनस c2a1, ये आ गया. 1 अपॉन a1b2, ये आ गया. कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर दो तो आपको ये दिखेगा दिस इज इक्वल टू दिस. तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 का 1 में, तो आप देखना बच्चों ये वैल्यू आ गई, x की ये आ गई और y की ये आ गई. बट यू रिमेंबर दिस इज द रियल मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसमें क्रॉस हो भी रहा है, दिख भी रहा है. एक कंडीशन दिमाग में रखिएगा, ऐसा तभी पॉसिबल है सॉल्यूशन के केस में जब ये जीरो ना हो. मैंने पहले भी बताया था, कौन, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0. अदरवाइज नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कैसे. अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताऊं तो ये बनेगा a1 b1 b2, a1 b2 माइनस वाले को उधर ले जाएंगे और बीच में यही रखेंगे नॉट इक्वल टू, तो क्या बनेगा a2 b1 बनेगा ना. अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का रेशियो बनाएंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अच्छा बताइए, ये होगा तभी तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा. अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड. तो अगर कोई पूछता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पता लगता है आपको, तो आप बता सकते हैं जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डेराइव कर रहे थे तो एक कंडीशन सर ने दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन. ओके, ऐसे तीनों कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की और नो सॉल्यूशंस की. नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ. नाउ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 15. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द केसेस ऑफ सॉल्यूशन. राइट, इधर ले लेता हूँ मैं. फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. ये देखिए, ये a1x b1y c1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में है, तो आप a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वल टू में कंपेयर करके. अंडरस्टैंड, यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कर लिया. हमने केवल दो रेशियो इसके कंपेयर किए. पहला रेशियो कंपेयर किया कौन सा, a1 अपॉन a2, और दूसरा कंपेयर किया b1 अपॉन b2. क्योंकि उसने यूनिक कह दिया है तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास ये होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अंडरस्टैंड. अगर आपको इतना पता चल गया कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ a1 की और यहाँ a2 की, दोनों को सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल में. ये साइन बना के चलिएगा, ये नॉट इक्वल टू, डोंट चेंज.
तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें एक कंडीशन मिली, p इज नॉट इक्वल टू 4। पूछा तो था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पूछा था ना। तो क्वेश्चन आस्क फाइंड p और आपने आंसर क्या दिया, p इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है व्हाट इज p। तो देखिए आंसर अब आएगा, व्हाट इज p। देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p except for the given pair of equation will have unique solution. What does it mean? सर p की वैल्यू 4 नहीं है तो फिर कौन है, ऑल वैल्यूज, फिर कोई भी रख दो आप। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, p इज नॉट इक्वल टू 4। उसने ये नहीं बताया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p कैलकुलेशन में बताया p की वैल्यू 4 नहीं है। मान लो भाई 4 नहीं है तो फिर कौन है, ऑल वैल्यूज। उसने बोला देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 को छोड़ दीजिए। अंडरस्टैंड। ये स्टेटमेंट अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा आपने तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, 1 मार्क नॉट अवॉर्डेड। इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन तो कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो k की वैल्यू फाइंड करेगा, p की वैल्यू फाइंड करवाएगा, कुछ और वैल्यू फाइंड करवाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू दिस, p इज नॉट इक्वल टू दिस। तो फिर ये तो बताना है ना, क्योंकि उसने वो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आप बता दीजिए कि देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p या ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट दिस, बाकी सारी वैल्यूज इसके लिए वेरीफाई हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल 16 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, कौन सा सॉल्यूशन आ गया इसमें, इनफाइनाइट। याद करो यूनिक में क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या था, कंडीशन याद करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c, ऑल 3 रेशियोज मस्ट बी इक्वल। ये देखिए सबसे पहले तो उसने इस इक्वेशंस की प्रॉपर कंडीशन में देखा कि a1 हो जाएगा k, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -k -3, a2 हो जाएगा 12, b2 हो जाएगा k, c2 हो जाएगा -k। ये देखिए तीनों का रेशियो बना दिया उसने, ये देखिए बन गया। रेशियो बनने के बाद उसने बताया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में ऑल 3 रेशियोज मस्ट बी इक्वल। अब आगे बढ़ता हूँ, उसने फिर तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व किया। तो फर्स्ट केस का उसने लिया, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को, जब इसने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया k इंटू k स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो k की 2 वैल्यू आ गई। अब 36 में जब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस लगाया जाता है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तब और डिटेल बताऊंगा इसको। तो k की 2 वैल्यू आ गई, +-6। फिर उसने सेकेंड और थर्ड पार्ट का क्रॉस मल्टीपल किया तो फिर उसकी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करने पर k की यहाँ पर भी 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक आई 0 और एक आई 6। तो बताइए क्या यहाँ k की 4 वैल्यू होगी, +-6 0 6, नहीं, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी। अब देखते हैं कौन। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k that satisfied both conditions is k is equal to 6. For this value the pair of linear equations has infinite many solutions. तो k की कौन सी वैल्यू उसने एक्सेप्ट करी, 6। अंडरस्टैंड, ना तो 0 लिया उसने ना -6 लिया है, इसलिए k की वैल्यू कौन सी लिखना है आपको, 6 लिखना है। बाकी सॉल्व तो ये दोनों कंडीशन में करके निकालना ही पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंड। ऐसे ही जैसे यूनिक सॉल्यूशंस पर मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताया, ऐसे ही नो सॉल्यूशंस पे भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यू डू दैट क्वेश्चन। उसमें अगर पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो दोनों रेशियो लेना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये तो पूछेगा नहीं कि कौन सी वैल्यू p की नहीं है तो फिर हम इज नॉट इक्वल टू c1/c2 पे चले जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो नो सॉल्यूशन में बड़ा आसान है निकालना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फट से निकाल दीजिए k की है या p की है और डायरेक्ट वैल्यू आ भी जाती है। और इक्वेशन में रख के भी अगर आप देखोगे तो वो कंडीशन भी वेरीफाई हो जाएगी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यू रिमेंबर, एक कंडीशन इक्वेशन में बनती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल। वैसे बहुत से बच्चे रिड्यूस नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, बट रिड्यूसिबल कंडीशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर डिस्कशन करें तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13। एक ये है 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2। इसमें ये दिखाया गया कि अगर 2/x को ऐसे लिखा जाए, देखो ऐसे, और 3/y को ऐसे लिखा जाए,
और फिर रिड्यूस कर लिया जाए इसको कि 1/x इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, m या v या u, इस तरह से, सपोज इस तरह ले लिया u, और 1/y को क्या लेट कर लिया जाए, तो देखिए ये इक्वेशन अगर यहाँ v ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, ऐसे ये बन जाएगा 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। ये देखिए इसने लिया है p, 1/x को लिया p, 1/y को लिया q, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, 2p प्लस 3q 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ऐसे इक्वेशंस तो आपने कई देखे हैं, अब इनको 3 मेथड से सॉल्व करना भी सीखा है। पहला कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन, थर्ड मेथड कौन सा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टैंड। तो उसने क्या किया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल ली, 2 और 3 आई, जहां लेट किया था उसने यहाँ पे रखा p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, और रखने पर जैसे ही क्रॉस मल्टीपल किया तो x आ गया 1/2 और y आ गया 1/3, है ना, ये है 1/3, ये तो 1/y क्रॉस मल्टीपल करेगा तब आएगा उसका। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू। और बहुत से बच्चे रिड्यूसिबल नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई सीधा किया यहाँ, अंडरस्टैंड, 3 का मल्टीप्लाई सीधा किया यहाँ, और यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा y, और इमीडिएट आपकी x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1/2। तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप रिड्यूस ही करें p q में, m n में या u v में, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। सो माय स्टूडेंट्स, जो मैं हमेशा करता हूँ जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो CBSE के क्वेश्चंस का पैटर्न ज़रूर लास्ट में देता हूँ। तो सी द CBSE क्वेश्चन 2020 का पैटर्न क्या रहा है इस साल 2020 में, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky 7, लो कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। बेटा बताओ इनकंसिस्टेंट कहाँ मिलता है, जहाँ नो सॉल्यूशन होता है, यानी a1/a2। मेरे वो चैप्टर 1 to चैप्टर 5 के क्वेश्चंस देखिएगा आप, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करके मैंने बताया है कि कैसे सॉल्व होंगे, अंडरस्टैंड। इन्हें ज़रूर आपको होमवर्क में कर लेना है प्रैक्टिस के तौर पे। हाँ, ये जो और वाला क्वेश्चन है इसे नहीं करना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना। अभी जब मैं क्वाड्रेटिक करूँगा तो आपसे डिस्कस करूँगा। हाँ, इसे ज़रूर कर लेना, 2x प्लस वाई 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 में xy की वैल्यू फाइंड करना, और फिर xy की वैल्यू इसमें रखना तो एक वैल्यू ये आ जाएगी, इसमें रखना तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और यही क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों ने इस साल बोर्ड में क्या किया है, इन दोनों को सॉल्व किया, x की y की वैल्यू निकाली और इसको छोड़ दिया, अंडरस्टैंड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर छोड़ के आ गए। ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किया, बहुत से सक्सेस हुए, बहुत से नहीं भी हो पाए। इसे आप ज़रूर मेरे उस वीडियो में देखें जिसमें मैंने CBSE क्वेश्चन चैप्टर 1 to चैप्टर 5 को किया है, ओके। और ये ज़रूर आप सभी को करना है, क्या लिखा है, सॉल्व ग्राफिकली। इसको लीजिए, एक टेबल बनाइए, इसको लीजिए, एक टेबल बनाइए, और बनाने के बाद ग्राफ पर प्लॉट करिए और अपनी कॉपी में इसको पेस्ट कर दीजिए। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ 2020 CBSE क्लास 10th, बोथ standard and basic. So thank you very much. Okay, all the best, and wait for new video next chapter. Thank you very much.